Reading is something which I enjoy the most, until unless that book doesn't make me feel bored. From past 1 year, I read almost 10 to 15 books including audiobooks. Because sometimes मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता, तो I feel like listening to audiobooks and henceforth I developed this habit of reading a book daily. And now this is the one thing in my whole day which I love doing the most. As George R. R. Martin said in his book A Dance with Dragons, that a reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only one. I totally agree with this. Hola people, welcome back to my channel. So first of all, I hope you all are doing great. And आप लोगों ने टाइटल से समझ ही लिया होगा that what this video is going to be. So without much further ado, let's just get into this video. So the first book is Have a Little Faith by Mitch Albom. This book was never on my TBR list, but after reading Tuesdays with Morrie, I just love the writing of Mitch Albom, like the way he writes the book. It is so fascinating, I can't describe in words, and that's why I decided to read this book, and I'm glad that I did. At first when I started, I feel like shit, I don't think कि मैं इसे continue कर पाऊँगी, but then after few chapters I felt like okay, this is the greatest book I have ever read. This little book has a lot to say, and it says so with elaborating a life which we all know कि हम life को जानते हैं but actually we don't. ये मुझे ये book पढ़ने के बाद पता चला. Have a Little Faith is an amazing story about a rabbi, a Christian minister, and a man with a very little faith. This book will take you through an incredible journey with a beautiful message in the end. What I have learned from this book is that we judge people or anyone too soon. उन्हें बिना जाने हम उन्हें जज कर लेते हैं और हमें लगता है हमारे assumptions के अकॉर्डिंग ही वो हैं, but it is not right. और इस बुक में ये चीज़ बहुत अच्छे समझाई गई है. And the next thing which I loved in this book कि आप किसी भी religion के हो, किसी भी caste के हो, आपका फेथ उस पे मैटर नहीं करता है. आप एक ह्यूमन हो और वही आपको डिफाइन करता है. सो मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी इस बुक का. आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस वन एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट, एंड इफ़ यू रेड then let me know in the comments ki you loved it or not. I can assure you that you won't regret reading it. And after reading this, don't forget to read Tuesdays with Morrie by Mitch Albom, cause that one is also a masterpiece. You won't regret, जब आप खरीदोगे ना उसको पढ़ने के बाद, you won't regret purchasing it. The next book is The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. मार्क मैंशन इज़ समवन जिसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, बट ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम हमेशा प्रॉब्लम्स आने पे या तो कंप्लेन करते हैं या फिर उस प्रॉब्लम से एस्केप करने की कोशिश करते हैं. बट मार्क मैंशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव ही हम लोगों से उसे अलग बनाता है. एंड ये सारे जो पर्सपेक्टिव हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके हैं, उसने इस बुक में बहुत यूनिक वे में बताया है. And that's why I literally loved the writing of his book. जिस तरीके से उसने इस बुक को लिखा है वो बहुत ही अच्छा है. टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक से राइटिंग थोड़ी अलग है. This was the book which was highly recommended by one of my friend, and that's why I decided to read this one. But after reading this, I'm so grateful to that friend that उसने मुझे ये suggest करा, because I तो literally loved it. This book hits you like a much needed slap in the face from your best friend. Hilarious, vulgar, and immensely thought provoking. So only read it if you're willing to set aside all excuses and take an active role in living a better life. अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी थॉट्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हो, देन ओनली गो एंड रीड दिस बुक. दिस बुक इज़ very different from other self-help books. Also, as the title suggests, you don't need to keep worrying about the stuff कि लोग क्या सोचेंगे एंड उसने मेरे को जज कर दिया, उसका क्या ओपिनियन होगा.
कब कहाँ किसे कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, दिस यू विल गेट टू नो आफ्टर रीडिंग दिस बुक. सो आई हाईली रिकमेंड टू ऑल दोज जिन्हें टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पसंद या फिर जो सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं प्रेफर करते पढ़ना. I just want you all to read this one cause I can assure you कि आप एक बार पढ़ोगे तो you'll fall in love with self-help book. Next book is Roses Are Blood Red by Novonil Chakraborty. Did you ever felt like आप एक बुक उठा रहे हो और आप एक बुक को तभी रख रहे हो जब आप उसे फिनिश कर रहे हो? This is one of them. Cause अगर आप फिक्शन लवर हो और अगर आप कोई थ्रिलर रोमांस काइंड ऑफ फिक्शन पे मतलब थ्रिलर रोमांस काइंड ऑफ बुक पढ़ना पसंद करते हो तो आई कैन अश्योर यू कि दिस बुक इज़ फॉर यू ऑल. एंड ये मेरा इस ऑथर का सबसे पहला बुक था कॉज मैं जनरली ज़्यादा फिक्शन बुक पढ़ती नहीं हूँ. बट IDK समवेयर आई वॉन्टेड टू रीड हिज बुक कॉज मैंने बहुत सुना था इनके बारे में एंड आई थॉट कि लेट्स जस्ट रीड वन ऑफ हिज बुक एंड आई एम ग्लैड कि आई रीड इट बिकॉज बहुत ही अच्छी बुक है ये. लाइक जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, लाइक बहुत ही अच्छे से. और वर्ड्स वोकैबलरी बहुत सिंपल है. लाइक अगर आप टिपिकल इंग्लिश बुक नहीं पढ़ते हो जिसमें बहुत हाई वोकैबलरीज होती हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हो. द मोमेंट आई स्टार्टेड दिस बुक आई हैव मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस इन माई माइंड लाइक व्हाई, हाउ, व्हेन, हु एंड देन OMG मोमेंट एट द एंड ऑफ दिस बुक. जितनी भी मिस्ट्री स्टार्टिंग से मिस्ट्री पे मिस्ट्री कि आप मतलब बुक उठाओ तो रख ही नहीं पाओ है. लास्ट में जो लास्ट का चैप्टर होता है उसमें सारी मिस्ट्रीज लाइक सारी सॉल्व होती हैं. I mean seriously I was like how can someone write such an alluring story that you can't put it down without finishing it? Till the end it kept me hooked. I am still on thinking mode. What did I just happen? Like what did I read? What I have understood and is it really possible? And I can definitely say कि इस टाइप के बुक्स सिर्फ नोवोनिल चक्रवर्ती लिख सकते हैं cause he is famous for like जो fiction book पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि he is famous for thriller romance writing kind of books. So yeah, so if you are someone who love reading thriller fiction romantic books so go for this one and I can assure you कि you are gonna love it. Next one is My Journey Transforming Dreams into Action by APJ Abdul Kalam. This is a book about the story of APJ Abdul Kalam written by himself only. My Journey is a book which has different stories from APJ Abdul Kalam's life weaved together. It is written very simple words and I literally get into tears while reading this. Like इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद भी कोई इंसान कैसे गिव अप नहीं कर सकता है. लाइक पूरे थ्रू आउट द बुक उनके साथ कुछ ना कुछ होते चला गया. लाइक हर बार कुछ ना कुछ स्ट्रगल आते गई, कुछ ना कुछ सफरिंग आती गई एंड स्टिल दिस मैन नेवर गिव्स अप. लिटरली एक इंस्पिरेशनल बुक है, मोटिवेशनल बुक है जो कि आपको प्रेरित करती है कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते हैं, उन्हें पूरे करने के लिए हर एक नाकाम कोशिश भी करनी चाहिए. हम हमेशा जनरली सक्सेसफुल इंसान का सक्सेस देखते हैं और उस पर ही जज करते हैं बट उस सक्सेस को पाने के लिए कितना फेलियर हुआ होता है ये कभी कोई नहीं देखता, ना कभी कोई नोटिस करता है, ना कभी कोई ज़्यादा जिक्र करता है. हमेशा कहता है ओके ही इज़ अ सेलिब्रिटी तो वो सेलिब्रिटी है, वो फेमस हो गया बट बचपन से ही और शी इज़ नॉट फेमस एक्सेप्ट समवन. इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इस बुक से सीखा कि ड्रीम्स आर नॉट दैट वी सी इन आवर स्लीप बट द वंस दैट नेवर लेट अस स्लीप. व्हेन ट्रबल्स कम ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ योर सफरिंग्स. Adversity always presents opportunities for introspection. This is the book I want to recommend to all teenagers and adults because this book has so inspirational stories which will motivate you to keep going and achieve your goals at any cost. No matter आप कितने बार गिरो, हर बार उठ के अपने गोल को अचीव करना if you genuinely want to achieve it. Last one is Love, Hope and Magic by Ashish Bagrecha. This book is from someone जिसे मैं अभी कुछ महीने पहले से ही जानती हूँ. Like
मैं कभी भी पोएम्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती थी. इनफैक्ट मैं पोएम्स पढ़ती ही नहीं थी. सो मुझे किसी भी पोएट के बारे में ज़्यादा नहीं पता था. वन डे आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग इंस्टा एंड आई केम अक्रॉस दिस मैन एंड उसके बाद मैंने इनके इंस्टा पोस्ट का पोएम्स पढ़ा विच ही यूजुअली पोस्ट ऑन हिज इंस्टा. एंड देन आई फेल्ट लाइक वाओ, लाइक इतने कम वर्ड्स में आप कितने सारे इमोशंस डिपिक्ट कर सकते हो, वो इनके पोएम से मुझे पता चला. एंड देन मुझे लगा कि ओके आई शुड रीड पोएम्स ऑल्सो. एंड देन आफ्टर सम टाइम ही लॉन्च्ड हिज अनदर बुक विच इज़ लव होप एंड मैजिक. एंड आई वॉज डैम श्योर कि मुझे ये पसंद आने वाला है बिकॉज इनके पोएम्स होते ही बहुत अच्छे हैं. एंड आई कैन अश्योर यू कि दैट यू ऑल आर गोना लविंग इट. लाइक इट इज़ एन अमेजिंग. क्योंकि मैं जनरली पोएम्स नहीं पढ़ती हूँ और अगर मैं ये कह रही हूँ तो यू कैन ट्रस्ट मी कि हो सकता है कि अच्छा हो. तो जस्ट गो थ्रू हिज लाइक इंस्टा प्रोफाइल एंड अगर वो पसंद आए तभी ये बुक खरीदना बिकॉज उसका कंपाइलेशन ही है ये बुक. इसमें डिफरेंट पोएम्स हैं लव से रिलेटेड, होप से रिलेटेड एंड मैजिक से रिलेटेड. सो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं इस बुक के बारे में. ग्रैब दिस बुक एंड रीड दिस. आई कैन अश्योर यू कि यू विल श्योरली लव इट. एंड इफ़ यू डिड देन लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने पढ़ा तो आपको कैसा लगा. जब भी आप पढ़ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा. बिकॉज अगर आप पोएम लवर हो तो आपको पक्का 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 पसंद आएगा. क्योंकि मैं एक नॉन पोएम लवर हूँ और मुझे पसंद आया तो आपको तो फॉर श्योर पसंद आएगा. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और ये मेरे कुछ टॉप 5 फेवरेट बुक्स थे. वैसे मैं जितने भी बुक्स पढ़ती हूँ ना सारे मेरे फेवरेट हो जाते हैं क्योंकि मैं सारे बुक्स बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ख़रीदती हूँ या फिर पढ़ना शुरू करती हूँ. ऑडियो बुक भी हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ कि रिव्यूज़ का गंदा नहीं होना चाहिए. बट स्टिल उनमें से चूज़ करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था. बट स्टिल आई डिड. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. Just kidding. So I hope you guys enjoyed watching this and if you did, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसे और उन्हें भी रिकमेंड करो बुक्स इनमें से कोई भी. अगर आपने इनमें से कोई भी बुक पढ़ी है देन लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको वो बुक कैसी लगी. और अगर नहीं पढ़ी नो वरीज़, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप कौन सा पढ़ना चाहोगे और पढ़ के ये बताना कि आपको कैसा लगा, कि मैंने रिव्यूज़ तो सही से दिए ना. बिकॉज मुझे तो अच्छे लगे. मैंने जो भी बुक सेलेक्ट करे हैं वो लिटरली बहुत अच्छे हैं. कुछ मोटिवेशनल हैं, कुछ पोएम्स, कुछ फिक्शन, कुछ नॉन फिक्शन, सबका कंपाइलेशन है. तो आई एम श्योर कि इनमें से कोई ना कोई बुक तो आपके टाइप का होगा ही इफ़ यू आर अ रीडर. देन जल्दी बताओ कि कौन सा बुक आपका फेवरेट रहा और कौन सा आप पढ़ना चाहोगे या फिर कौन सा आप पढ़ चुके हो. आई एम डैम एक्साइटेड टू रीड ऑल ऑफ द कमेंट्स. एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you know what you have to do. Give it a big fat thumbs up. Share it with your friends. Subscribe कब तक आप लोगों ने कर ही दिया होगा and if नहीं करा है then कर दो. What are you waiting for? It's free. So subscribe कर दो यार. आधे ज़्यादा ऐसे फ्री में देख के चले जाते हो. Subscribe कर देना चाहिए. हाँ. Till then, stay happy, take care and I will see you all next Friday. Bye.